So basically, I repeat, we have three main objectives. First objective is to maximize the placement percentage. Second objective is to maximize average package. And third objective is to maximize number of offers. And these are the prioritized objectives. क्योंकि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हर बच्चे के पास एक जॉब हो, ठीक है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो एवरेज पैकेज है वो मैक्सिमम हो, वी वांट टू मैक्सिमाइज इट। एंड थर्ड नंबर पे आता है कि हमारे पास, हमारे बच्चों के पास एक से ज्यादा ऑफर्स हो। तो in order to achieve these objectives, we will provide some flexibility in placement policy from time to time. However, the placement policy has been shared by Sanjay sir and me. So have you read that placement policy? How many of you have read that placement policy? Yes, sir. You have read? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Great, great. And those who have not read, I sincerely suggest them to read it, because this will affect your placement decisions, in which company you want to put efforts, which company you are, in which company you want to appear, in which company you want to apply, in which company you do not want to apply. Okay, but this is not hard and fast policy. We will be giving flexibility depending upon the situation at a different time. Okay, so now I want to give some statistics regarding the placement status of your senior batch. So till now we have single offers of 203, total offers are 300, average package is 5.2 lakhs per annum, highest package is 30.25 lakhs per annum, number of companies visited 85, and number of companies offered job 62, right? So basically this difference, अच्छा इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है मार्च, अप्रैल और सम पार्ट ऑफ मे, ये 2.5 months प्लेसमेंट सीजन हमारा नहीं हो पाया. दिस इज अ ट्रंकेटेड प्लेसमेंट सीजन. Otherwise this figure would have been much higher, and this figure would have also been much higher, right? But ये यहाँ का notation है. So basically whatever circumstances are there, we have to live with that. Average package is 5.2 lakhs per annum, which is significantly higher than the last year, which I think it was 4.4 lakhs per annum last year. Highest package is also very good, 30.25 lakhs per annum, and our students have been placed in Amazon SDE. Some of our students have been placed at a package of 18 lakhs per annum in Amazon Web Services, and there are certain other companies with higher packages, more than 10 lakhs. But my major concern is between this, the gap between this 85 and 62. So there are 23 companies which did not offer a single job to our students. And in these 23 companies, most of the companies were those who were paying a package more than this average package. Okay, so we do not want to repeat this thing, because अगर इस साल भी ये कंपनी एक भी प्लेसमेंट नहीं करके गई बीपीआईटी से, तो अगले साल से ये आना बंद कर देंगे. So just I want to show you the picture of your senior batch. Now branch wise I want to give some glimpse. There are total 123 strength of CSC. 93 single offers are there. 20 students were with the backlog and 7 students were unwilling. So the students with the backlog have a difficulty in getting placed. And this thing I also wrote on the group. This time the situation is not conducive, because you will not be allowed to appear in this 4th semester exam. 4th semester backlogs which you are planning to clear in this during this May. तो ये एक प्रॉब्लम है, बट इसके लिए आप लोगों ने शायद बात की है, तो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट निकलता है.
कुछ अनविलिंग होते हैं जिनको जीआरई करके विदेश जाना होता है या आईएएस की प्रिपरेशन करनी होती है, गेट की प्रिपरेशन करनी होती है. So more or less all the students of CSC are placed, and similarly for the IT. But EC we have around 60% placements, and typically we have around 10-15% placement. But ये placement percentage significantly improve होनी थी in March, April and May. And but because of this COVID-19, the situation is tough. The hiring scenario is not very positive. So you have to work hard. When going gets tough, tough gets going. तो आप लोगों को और efforts डालने हैं. सिचुएशन बहुत रोजी नहीं है प्लेसमेंट सिनेरियो पे. सिंजर सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ. But situation is not very rosy, to be very frank, and you have to work very hard, right? So there is a direct correlation between your academics and the placement, because if you see, most of the students who are between 80 to 90% are placed. Very rare student, the students who are between 50 and 60 are no one of them is placed. There were 12 students who are between 50 and 60%, no one is placed, and between 60 and 70 only 20% are placed. So but if you are in this 80-90 bracket or 70-80 bracket, there is a very high chance, if you work hard, there is a very good chance that you will be able to get selected in some company. So I just want to share this career options. There are various career options available. You can get a job, you can go to higher studies, you can go to government jobs, you can go to IAS, IES, public sector. Even the engineers are being placed in bank PO nowadays. However, as far as the jobs are concerned, there are various categories: sales and marketing jobs, mass recruiter job, technical support job, product companies, call centers, data analytics, core companies, web development companies, right? So these are some type of jobs which will be available in the market for you, and we will try most of them, if not all of them. We do not call center companies, okay, except that we call every company. We do not call any call center company. Sanjay sir, am I right? Hello. कॉल सेंटर को हम नहीं कॉल करेंगे. पिछले सालों में भी कॉल नहीं किया, अब भी कॉल नहीं करेंगे. बाकी एवरी टाइप ऑफ कंपनी वी ट्राई टू कॉल, राइट? सर एक कॉल सेंटर आया था हमारे पास लास्ट ईयर जी, सीवेंट इंडिया करके आई थी एक कंपनी. अच्छा, बट उसका जो कॉल सेंटर वाला प्रोफाइल था वो टेक सपोर्ट से रिलेटेड था एंड पैकेज वाज अराउंड 5,80,000. ओके, सो वी विल बी वेरी सेलेक्टिव इन केस ऑफ कॉल सेंटर, एंड sometimes this is helpful for backlog students. This type of company sometimes allows backlog also, so we will be selective in that case, right? So majorly we will focus here today placements पे हम बात करेंगे. So there are certain skill sets required for placement, and these are these skill sets: written communication skills, oral communication skills, verbal, quantitative aptitude, logical reasoning, DSLGO basic, DSLGO advanced, OS, networking, troubleshooting, DBMS, data mining, AI, ML, software engineering, OOPS, FCS, and other fundamental subjects, core subject of your branch, GK, puzzles, and web development. These are the skill sets required by whatever placement type companies I discussed here. These companies will require some of these skills, right? So I prepared a matrix for this, although this matrix may not be very correct and there can be certain ifs and buts, but this is just a general trend. And अभी यहाँ पे डिस्कस इसको मैं नहीं कर रहा. आपके पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल पहले से भी है, मैंने पीपीटी आपके साथ शेयर किया हुआ है, दोबारा आप इसको देख सकते हैं. बट जहां तक समझ में आता है मेरे कि
अगर आप आईटी कंपनीज में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपके मास रिक्रूटर हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, चाहे वो फिर आपकी डेटा एनालिटिक्स कंपनी हो, उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेसिक है। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनमें आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एडवांस लेवल पे भी जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ हर कंपनी में क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। साथ साथ आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑरल कम्युनिकेशन स्किल और वर्बल, दीज आर एडेड एडवांटेजेस। देयर आर certain companies such as Amazon Web Services which highly focus on operating system, networking and troubleshooting. I specifically mentioned this category only for Amazon Web Services. So for Amazon Web Service, this OS networking and troubleshooting is highly desirable. Then we have this DBMS, data mining, AI and ML. There are certain companies in data science and machine learning field in which these subjects will become more relevant. However, substantial knowledge of software engineering, OOPS, foundation of computer science, and other fundamental subjects is desirable. For core companies, suppose I am talking about an electronics company. For that purpose, these things, data structure, algorithm, OS networking, these may not be that much relevant, and your core subjects will be more relevant. For example, Tata Power comes. So your electrical engineering, your distribution, electrical, how the generator works, how the transformer works, that will be more relevant in comparison to data structure and algorithm. So you should try to improve these skills. You should try to decide in which type of companies you are planning to go and which is the basic skill set required for those companies, and you should try to enhance your skills in these areas so that you can fulfill your goal. Okay, this matrix, you can take help of this matrix, and with the help of that matrix you can decide, you can prioritize things because there are multiple skills, time is less and you have to work very hard, so you can prioritize things. Okay, so thank you very much. This was all from my side. Now we will open the session. संजय सर, हेलो। आई एम अवेलेबल सर। सर आप बोलिए सर, अब बताएं। सर मैं तो क्वेरी लूंगा कि अगर किसी को प्लेसमेंट पॉलिसीज से लेके कोई क्वेरी है या कंपनी रिलेटेड कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क मी। यस, एक तो चीज ये हो गई कि कंपनी क्वेरी रिलेटेड कोई पॉलिसी हो तो। हेलो। हाँ जी। यस सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर आपके पास कोई लिस्ट है कि कौन सी कंपनीज कब आएगी सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट, और हम एक शेड्यूल बना सके अपना भी कि हमें किस में अप्लाई करना है किस में नहीं करना। तो अगर हमें पहले से पता होगा कि कौन सी कंपनी कब आ रही है, तो क्योंकि प्लेसमेंट पॉलिसी में भी वो सिर्फ 1 जॉब ऑफर के लिए लिखा हुआ था, तो हमें प्लान अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। यस, इस साल सिचुएशन ये है कि कंपनी ओपन ही नहीं हो रही है अपने कंडीशंस को लेके कि वो क्या करने वाली है। कोई आइडिया नहीं है। लास्ट ईयर हमने टेंटेटिव लिस्ट शेयर करी थी बच्चों के साथ, पर इस साल हम भी पोजीशन में नहीं है कि आपको टेंटेटिव लिस्ट दे पाए। ओके सर। एक्चुअली आप ये समझो कि द सिचुएशन इज नॉट वेरी सर्टेन। हर जगह अनसर्टेनिटी है, तो वही अनसर्टेनिटी प्लेसमेंट सिनेरियो में भी है। प्लेसमेंट सिनेरियो अभी कब शुरू होगा, कौन सी कंपनीज आर आल्सो नॉट श्योर कि कितनी हायरिंग करनी है। अभी बड़ा एक कंजर्वेटिव व्यू अपना रखा है, लेकिन हो सकता है कि वी कर्व आए और आपका प्लेसमेंट अच्छा हो, बट हो सकता है कि वो जैसे पहले अगस्त में शुरू हो जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेजरली कर लेते थे, हो सकता है इस बार थोड़ा सा डिले शुरू हो और जनवरी फरवरी मार्च कुछ अगस्त सितंबर अक्टूबर में कुछ कर पाए और मेजर हमारा जनवरी फरवरी मार्च में आए, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर दिवित बताओ। हेलो दिवित। यस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है।
सर मैंने भी सर प्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ी थी और उसमें सर वो x का और फिर वो 2x का लिखा था और 2 जॉब हाँ ऑफर अप टू मैक्स लिखा था। फिर मतलब कि मैक्सिमम अपना मतलब कि बेस्ट निकालने के लिए कभी ये ना हो ना कि सर उस पॉलिसी के कारण फिर हम अच्छी कंपनीज में फिर बैठ ही ना पाए, ऐसा भी कुछ हो दिवित ऐसे होता है कि हम 2 ऑफर की पॉलिसी को लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, हाँ पर जी। हम उसमें रिलैक्सेशन देते रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जनवरी पे उसको 3 ऑफर तक ले आए थे। ओके हाँ, और उस 2x को भी हम जैसे जैसे बच्चे प्लेस होते जाते हैं वैसे वैसे हम उसको 1.5 कम तक, करते जाते हैं। 1.5 तक दे जाता है, बट ओके इनिशियली 2 रहेगा। मास रिक्रूटर में प्लेस होते हैं। अगर कोई कंपनी दिल्ली एनसीआर से आ रही है एंड दे आर इंटरेस्टेड फॉर द सेम, हम उन्हें सेम पैकेज पे भी अलाउ कर देते हैं। ओके ओके देखो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, तीनों उसी प्रायोरिटी एरिया में है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई विशेष प्यार नहीं है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। बट वो 3 ऑब्जेक्टिव हमारे हमारे मेन है। सबको एक एक जॉब मिल जाए, एवरेज पैकेज बहुत अच्छा हो जाए, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि मल्टीपल ऑफर्स हो बच्चों के पास। प्लेसमेंट पॉलिसी में हमें आपको रिलैक्सेशंस मिलते जाएंगे। सौम्या बताइए। सर कुछ सौम्या, नहीं, प्रीति, पहले हैंड रेज किया था जब सर ने कुछ पूछा था। अच्छा, तो अभी जिसने प्रीति, पूछना वही रहे, हैंड रेज करे, बाकी हैंड डाउन कर लें अपना। सर वेबडी की कितनी कंपनीज आती हैं? वेबडी की 10% के करीब होती होंगी संजय सर। बस यही रहती है सर, 10 से 20% के बीच में। 10 से 20% के बीच में रहती है। बट दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज अगर आप कर लेते और हैं। किस टाइम में आती है इसको? टाइम किसी का कुछ नहीं पता भाई। देखिए इस साल हम आपको बता रहे हैं, लास्ट ईयर हमारे पास मैक्सिमम जो लॉट ऑफ कंपनीज हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आ गई थी। नवंबर तक हम 200 पे खड़े थे। नवंबर का प्रेजेंटेशन मैं देख रहा था, 200 सिंगल ऑफर थे, नहीं 250 मल्टीपल ऑफर्स थे, और 190 करीब थे वो हमारे सिंगल ऑफर। पर इस साल सिचुएशन ऐसी है कि हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे कि अगस्त से ही जा जाएंगी। सर आप आइडिया दे सकते हो कि ड्राइव कब, मतलब मेजरली कब तक स्टार्ट होगी? आइडिया दे दो बस। देखो आइडिया तो हम आपको क्या बताएं कि 4-5 कंपनी की लिस्ट तो हम आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं। माई एनाटॉमी से टैक्स सिस्टम की शॉर्ट लिस्टिंग आपके पास आ गई है, सीडी के ग्लोबल की आज आ गई, जस्ट पे की 1 को आ जाएगी, 1 अगस्त को, 30 जुलाई तक उसके टेस्ट हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, पैक्सकॉम के रजिस्ट्रेशन हो गए, पैक्सकॉम को हमने डेटाबेस शेयर कर दिया, उसकी भी डेट जल्दी आ जाएंगी। आइडिया दे सकता हूँ, एक थॉट टू बाइनरी है, एक अभी न्यूजेन है, जोस टेक्नोलॉजी है, ये कंपनी है जिनके साथ हम लोग फाइनल स्टेज पर हैं। बताओ ध्रुव। सर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कितने परसेंटेज कंपनीज आती हैं अभी? तो बहुत कम कंपनी जाती हैं। हम डेटा साइंस में इस बार ये इस दो बार तीन सिर्फ कंपनी आई थी, 3-4 ही कंपनी आई थी। जेडएस एसोसिएट्स थी, हाँ। बट जेडएस में काफी हमारे बच्चे पास लेके गई थी। एनालिटिक्स थी, और हाँ इस बार 20 बच्चे लिए जेडएस ने टोटल जेडएस ने हमारे लिए 8 college लाख से। का पैकेज है, जेडएस ने अच्छा लिया है, एंड होपफुली अगर उनका अच्छा रहा बिजनेस तो दे विल कम दिस ईयर आल्सो। ओके सर, थैंक यू। बताओ शुभम। हेलो हाँ शुभम। सर, ये कोई आपकी एक पॉलिसी थी कि अगर एक एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता कुछ 5 कंपनीज के लिए, तो आप एक बार एक्सप्लेन करोगे वो क्या सिनेरियो, क्या केस है? अगर आप कंटिन्यू 5 कंपनी को छोड़ते जा रहे हैं तो हम आपको पेमेंट की तरफ से बैन कर देंगे। सर जैसे आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 जॉब ऑफर्स होंगे, मतलब कि जैसे अगर आप कह रहे हैं तो हाँ जी। अगर हम अंडर परफॉर्म करेंगे उसमें भी कोई फायदा नहीं है, और अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उसमें भी फायदा नहीं है, तो हम इस केस में क्या करें? आप आके टीएनपी सेल को बता सकते हो कि आप इस स्पेसिफिक कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हो, फिर हम आपको एलिजिबल ही मार्क नहीं करेंगे उन कंपनीज में जो आपसे इंटरेस्टेड एरिया से नहीं है आपके। और सर यूएस में हमने कभी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं दिया, तो अगर हम 1-2 कंपनीज में जैसे सिर्फ एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए बैठना चाहें तो हम उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है हमें,
कि अगर हम सेलेक्ट अच्छा, हो हम गए ट्राई तो? नहीं कर सकते ना एचआरस के साथ। अगर आप सेलेक्ट हो गए, आप ज्वाइन नहीं करते, उसमें कॉलेज की रेपुटेशंस खराब होती हैं। आप वो समझो ना, कंपनीज को हर साल कॉलेज में आना है, ये बहुत सर हम बड़ा चैलेंज रहता है हर तो साल। तो सर हम इस एक्सपीरियंस के लिए मतलब क्या कर सकते हैं आपकी साइड से, मतलब कि अगर हमको कुछ एक्सपीरियंस देखिए, चाहिए आप हो तो? ऑफ कैंपस अप्लाई करो, लिंक्डइन पे अप्लाई करो। अब जैसे जो कंपनी, उसमें आप लोग अप्लाई करो ऑनलाइन। वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप अटेंड करो। जैसे मैंने आप लोगों को अभी ये कंपनी का शेयर भी किया था, आई थिंक। यस सर। ओके सर। बताइए चेष्टा। सर, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कंपनीज कितनी आती हैं? इस बार ओप्पो मोबाइल्स आई थी हमारे पास। वीवो का हमारा फाइनल स्टेज में था, बट कोविड के चक्कर में उन लोगों ने कैंपस नहीं किया। जिया सेमीकंडक्टर आती है हमारे यहाँ पे। उसके बाद 2-3 कंपनियां और हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। बट ओप्पो और वीवो आई डाउट कि दिस ईयर वो आएंगे बिकॉज ऑफ दिस चाइना कॉन्फ्लिक्ट, बट सम अदर इंडियन मोबाइल कंपनी में और सम कोरियन और सम अदर कंपनी में कम। But GIA Semiconductor is a very good company, but the selection process is very tough, and they ask the core electronics. And और ग्रुप डिस्कशन जो था उनका, उन्होंने बोर्ड पे एक सर्किट बना दिया और उसके बाद उन्होंने 10 बच्चों को बिठा दिया और उस सर्किट को डिस्कस किया। अच्छा, ईसी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक फीजिबिलिटी रखते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की कंपनी में प्लेस होते हो और उसके बाद अगर आपकी कोई कोर कंपनी आ रही है किसी भी पैकेज पे, चाहे वो आपकी सिलेक्शन कंपनी से कम भी है, तो हम उन्हें अलाउ करते हैं कोर कंपनी में बैठने के लिए। ओके सर। अनिकेत बताओ। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, जिन बच्चों की बैकलॉग्स है उनका क्या सिनेरियो होगा प्लेसमेंट का? देखिए बच्चे, वो हम एज पर कंपनी पॉलिसी जाते हैं। अगर कंपनी बैकलॉग अलाउ करती है, पर ये मान के चलिए आप लोग कि 50% या 60% कंपनीज बैकलॉग अलाउ नहीं करती हैं। ज्यादा तो ही जिन सब बच्चों की 70% बैकलॉग है, वो जितनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो ट्राई करें, वो वेट ना करें। संजय सर, क्या हम कंपनीज को बोल सकते हैं इस बार की स्पेशल कंडीशन है, और कैन वी ट्राई दिस कि भाई ये बच्चे बैकलॉग क्लियर करनी थी, यूनिवर्सिटी ने मौका नहीं दिया, तो क्या कुछ हम इस तरह से बात कर सकते हैं? सर, हम हर कंपनी को एक रिक्वेस्ट तो जरूर करेंगे। जैसे हमारी कोई रिक्वेस्ट कंपनी जरूर करेंगे फाइनल होती है जी। हाँ, जैसे अभी मैंने पेस्कॉम को रिक्वेस्ट की थी। हाँ जी। पर उन्होंने बोला सर हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी यही है, तो सर, हम इसके at least- बियॉन्ड नहीं जा सकते। सर, एटलीस्ट 1 बैकलॉग तो अलाउ कर देनी चाहिए। भाई हम तो चाहते हैं, देखो हम तो चाहते हैं हमारा हर बच्चा हर कंपनी में बैठे ताकि चांस बढ़ते चले जाएं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। कंपनी अपनी प्लेसमेंट पॉलिसी से नहीं हटती। हम कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, संजय सर और मैं दोनों जरूर कोशिश करेंगे हर कंपनी से कि बैकलॉग को इस बार खास तौर से विशेष तौर पे कोशिश करेंगे। राइट अनिकेत, प्रॉब्लम ये आती है अगर हम आपको अलाउ भी करते हैं हाँ जी सर। और अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग के टाइम आपकी बैकलॉग रह जाती है, जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट शो करोगे कि आपकी बैकलॉग है, तो फिर वो कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कॉलेज ने अलाउ कैसे किया था। अच्छा, कंपनी से ऊपर होकर किसी को अलाउ नहीं करेंगे सर, कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे, बस ये हम एश्योर कर सकते हैं। हर कंपनी से हम आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कि दिस इज स्पेशल कंडीशन, प्लीज अलाउ दिस टाइम। ड्यू टू लाइक एब्सेंटी वगैरह के कारण भी कुछ एप्लीकेशन से बात नहीं बन सकती? नहीं, उससे कुछ नहीं बनती सर, क्योंकि लाइक एग्जाम वैसे फेल नहीं हुए बट एब्सेंट होने के कारण से रह गया था। आई डोंट थिंक कंपनी विल कंसीडर, बट आप कह सकते हो। मनु बताइए। सर, इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनीज कौन कौन सी आती हैं? बच्चे वही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आ रही हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक कोर नहीं आती इलेक्ट्रिकल के लिए। अच्छा सर, और जो सर मास scenario- रिक्रूटर्स होते हैं वो? मास वो रिक्रूटर्स सब आर द allow बेस्ट करते हैं बेट फॉर इलेक्ट्रिकल्स ट्रिपल ई। को। ऐसी कोई मास रिक्रूटर नहीं है जो इलेक्ट्रिकल को अलाउ नहीं करती। Mass टीसीएस, recruiters are the इन्फोसिस, best bet विप्रो, for triple E. कॉग्निजेंट, माइंडट्री सब अलाउ करते हैं ये। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए तो बेस्ट यश बेट बताओ। वही है। हेलो सर, एक ही चीज हाँ, यश। सर ध्रुव बोल रहा हूँ मैं। सर, कह रहा बताओ। था सर, जैसे सर अगर किसी की बैकलॉग है तो सर उसको जैसे अपॉर्चुनिटीज कह रहे हो,
सर किस तरीके की करनी चाहिए आपकी तरफ से? सर हमें पूरी वो प्रिविलेज मिल रहा है प्लेसमेंट का, सर हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हेलो ध्रुव, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सर एक मिनट। हेलो, हाँ अब ठीक है, बताओ ध्रुव। हेलो आ रही सर आवाज अब? हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी की बैकलॉग है तो सर जैसे आप अपनी तरफ से, सर हम आपकी तरफ से तो पूरा प्रिविलेज मिल रहा है सर हमें प्लेसमेंट के लिए, सर हम अपनी तरफ से क्या अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले? ध्रुव, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि जो कंपनीज अलाउ करेंगी, चाहे आप भी ट्राई करोगे हम भी ट्राई करेंगे, वहां आपकी एप्लीकेशंस जरूर पहुंचेंगी। ओके सर, जैसे ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करें तो उसमें भी बैकलॉग का सिस्टम होता है? मैक्सिमम कंपनीज ऑफ कैंपस में ऑल क्लियर ही मांगती है। आपको ऑन कैंपस ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बैकलॉग्स को लेके। ऑन कैंपस तो फिर भी सुन लेती है बात, ऑफ कैंपस में तो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगी, क्योंकि ऑन कैंपस में वो हमारे आई है, हमारा सोच लेते हैं चलो अच्छा देख लेते हैं एक आध कोई बच्चा ऐसा है तो कभी कभी उसमें। और हेलो संजय सर। हाँ जी बताओ सौरभ। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जय एंड सौरभ दोनों एक साथ मत बोलो प्लीज। हाँ बोलो सौरभ आप बोलो। हाँ जी सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है, फिलहाल तो हम लोग भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट आईटी कंपनीज के लिए, लेकिन इस साल जैसे कि आप बता रहे थे कि उम्मीद कमी है, जैसे तो क्या गेट के लिए फोकस करना चाहिए हमें? गेट से ना पीएसयू का बड़ा फायदा हो जाता है। एक तो एमटेक तो है ही, एमटेक के साथ साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कुछ फायदा हो जाएगा, बट अगेन आई डाउट कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कितने एक्सपेंशन के लिए जाएंगी, कितना हायर करेंगी, मतलब बड़ा अनसर्टेन तो है ही। तो और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फरवरी मार्च तक आते आते कुछ पिक कर जाए चीजें। कोर कंपनीज जो है वो लेट ऑफ द ईयर, फॉर एग्जांपल जैसे नवंबर दिसंबर में आती है। हाँ नहीं, हाँ नवंबर दिसंबर से पहले नहीं आती, बल्कि जनवरी फरवरी में आएगी कोर कंपनी, तो जनवरी फरवरी मार्च में रहती जाएगा। ऑलराइट सर, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं जानना चाह रहा था सर, जो स्विचिंग की वो है उसके लिए क्या है, मतलब जब स्विच करेंगे हम तो उसकी पॉलिसीज क्या हैं? स्विच क्या, कंपनी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो? यस सर। तो बताया ना, एक तो 2x होना चाहिए पैकेज। अगर आप 4 लाख पे, अगर आप 4 लाख पे प्लेस्ड हैं पहली कंपनी में, तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख की कंपनी पे आपको अलाउड नहीं होगा बैठना। सर तो वो तो वैसे एवरेज प्लेसमेंट को भी फिर अफेक्ट करेगा, तो सर उस पे तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा ना बाद में? नहीं, वो दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मैंने बताया था ना 3 ऑब्जेक्टिव में, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हर बच्चे के पास एक जॉब हो। ओके सर। हमारा एवरेज थोड़ा कम हो जाए लेकिन हर बच्चे के पास एक जॉब हो जाए, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। एवरेज सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव है। एंड सर जैसे कुछ मास रिक्रूटर्स वगैरह जो होती हैं वो कुछ बच्चों को होल्ड पे भी रखते हैं ना, आई गेस कि कोई लीव करेगा देन वो दिल रिक्रूट देम, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी मास रिक्रूटर तो ले लेती है तो ले लेती है, फालतू बेंच पे बिठा के रखती है, लेकिन सैलरी तो देती है, रिक्रूट तो करती है। नहीं सर, कुछ बच्चों को होल्ड पे नहीं डालते, वो मैंने सुना था ऐसा। नहीं, जनरली नहीं डालते, रिक्रूटर होल्ड पे नहीं डालते। ओके सर। दूसरी कंपनीज डाल लेती हैं, जहाँ मतलब 3 4 5 ही लेने होते हैं तो वो एक आध को होल्ड पे डाल के छोड़ देते हैं कि इस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। तो मतलब जहाँ 4000 लेने हैं 4010 भी ले लेगी कंपनी, उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता मास रिक्रूटर। हाँ सर, क्योंकि जो स्विच करते होंगे उनके स्पॉट्स तो एम्प्टी हो जाते होंगे, तो जस्ट कंफर्म कर। ओके सर, थैंक यू। रिक्रूटर पहले कैलकुलेट करके रखती बच्चे हायर करते हैं। वो अगर उन्हें 2000 लेने हैं ना बच्चे, तो वो 3000 तो हायर करेंगे, हम 3500 हायर करेंगे बल्कि। ओके सर। हेलो, बोलो शुभम। हाँ सर, ये पूछना था एंड्रॉइड डेवलपमेंट की कितनी % कंपनीज आती होगी? मेरे ख्याल से 5-7%, 4-5 कंपनीज शुभम। ओके 4-5 कंपनीज आएंगी। हमारे पास मैक्सिमम रिक्रूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ही आएंगे। डीएसएल को इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सेकंड नंबर पे वेब कह सकते हो। ओके सर, ओके। तीसरे नंबर पे मोबाइल आएगा, फिर मोबाइल या एनालिटिक्स आ जाएगा। हाँ एनालिटिक्स आएगा, डेटा एनालिटिक्स।
उसके बाद आएगा मोबाइल। सर हाँ ईशांक। सर जैसे अमेजन कंपनी आती है तो उसका प्रोसेस क्या है हायर करने का, मतलब देखो अमेजन ना दो तरह आप से आती है। अंडरस्टैंड करिए कि जो भी कंपनी आएगी सबका प्रोसेस सिमिलर ही रहेगा। सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ही होगा। कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड के साथ टेक्निकल ज्वाइंट कर लेती हैं, कुछ कंपनीज अलग से टेक्निकल राउंड लेती हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये एश्योर होके चलिए कि आपको 90% कंपनीज में फर्स्ट टेस्ट आपको एप्टीट्यूड देना ही देना है। राइट। उसके बाद आपका टेक्निकल होगा, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, टेक्निकल इंटरव्यू होंगे, एचआर इंटरव्यू होंगे। बीच में कोडिंग 90% राउंड भी हो कंपनीज में यही प्रोसीजर रहता है। कोडिंग राउंड भी होगा अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां उस तरह की कंपनी है तो एक कोडिंग राउंड होगा। वो सेकंड राउंड जो टेक्निकल है उसमें कोडिंग हो जाएगा, या फर्स्ट राउंड में भी वो एप्टीट्यूड के साथ कई बार 2 क्वेश्चन कोडिंग के ले लेते हैं। सर फिर जो कोक्यूब्स, एमकैट और ई-लिटमस वगैरह टेस्ट है वो कैसे हेल्प करेंगे हमारी? बच्चे वो उनकी कंपनी जाती हैं, कोक्यूब, एमकैट, ई-लिटमस अपनी खुद की कंपनी रिलीज करते हैं। उसमें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कोक्यूब के स्कोर पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लेती है और सीधा आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू हो जाता है। उसमें आपके रिटन टेस्ट स्क्रिप्ट्स हो जाते हैं। ओके सर। सर इसमें अप्रोक्स कितने मार्क्स पे वो मतलब कंपनीज हायर कर लेती है ऐसे एमकेट वगैरह? देखिए 600 प्लस होना चाहिए कोक्यूब का आपका स्कोर, जो मैं हर बार कहता हूँ 600 प्लस है। और आपका मतलब हर सेक्शन में नंबर अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत डाउन हो। कई बार होता है आपने कोडिंग बहुत अच्छा कर दिया, एनालिटिक्स अच्छा कर दिया, बट एप्टीट्यूड में बहुत कम स्कोर है, तो जहाँ सेक्शन वाइज कट ऑफ आ जाती है वहां फिर आप लोग आउट हो जाते हो। ओके सर बताइए। आवाज आ रही है सर? स्वामीनाथन बोलिए। हाँ स्वामीनाथन। हाँ सर, मैं पूछा था अगर हमने कहीं ऑफ कैंपस हमें प्लेसमेंट मिल जाए तो फिर Okay. भी जो टीएनपी का जो रूल है कि मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो उस पर अप्लाई होगा क्या अगर हमें बाहर से कहीं मिला हो तो? देखो आप जब खुद अप्लाई कर रहे हो उससे कॉलेज का कोई लेना देना नहीं। ऑफ कैंपस वो जो कॉलेज आप लोगों को जहाँ भेजे, या मास रिक्रूटर को भी हम अगर हमारे से पूछते हैं, लिस्ट आती है हमारे पास। ठीक है, आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, खुद से ऑफर ले रहे हो, उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। ऑफ कैंपस हम उन्हें काउंट करते हैं जब कॉलेज आपको भेज रहा है। अच्छा, जैसे कई बार क्योंकि कुछ कंपनी ऑन कैंपस नहीं आती, ऑफ कैंपस इनवाइट करती है, कॉलेज आपको वहां भेजेगा, वो काउंट होता है हमारे ऑफ कैंपस प्रोसेस में। मतलब आपने अपने आप से जॉब लेके हमें नहीं बताया तो हम क्या कर लेंगे आपका? नहीं सर, जैसे आपने अभी कहा था एमकैट और ई-लिटमस अपने खुद की वो तो कंपनी काउंट होगा भाई। वो तो हाँ, काउंट होता है ना बच्चे। वही तो पूछ रहा था सर वो कि काउंट अगर होगा। अच्छा ठीक है। जिसमें हम लूप में रहेंगे, कॉलेज लूप में रहेगा जिस जॉब में, दैट जॉब विल बी काउंटेड। हेलो बताओ विदुषी। सर, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा तो 20 बैच का प्लेसमेंट पास आ जाएगा, तो फिर 21 को सेकंड मतलब 21 बैच को जो प्रेफरेंस होगी वो सेकंड दी जाएगी? बच्चे आपकी प्रेफरेंस अब फर्स्ट हो गई है। सर अभी तो फर्स्ट है ना, मतलब अभी पता नहीं ना कब से स्टार्ट होगी या फिर कब से प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब अच्छे से कब से स्टार्ट होगा? देखिए आप जो 2020 बैच है आप अंडरस्टैंड करिए, उसमें 203 बच्चे ऑलरेडी सिंगल ऑफर प्लेस हो चुके हैं। उसमें अगर हम बच्चे काउंट भी करेंगे तो मैक्सिमम कोई 30-40 बच्चे होंगे जिन्हें जॉब चाहिए। 40 से ऊपर बच्चों ने तो हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो हमारे पास लिस्ट है, और 20-30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3 से भी ज्यादा बैकलॉग्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो प्रायोरिटीज आपकी हैं। उसमें अगर कोई 30-40 बच्चे जिन्हें जॉब चाहिए, उन्हें हम ज्यादातर ऑफ कैंपस ही प्लेस करवाएंगे। सर जो एक्चुअल प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब इस बार तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, वो कब से होता था, मतलब कौन से? अगस्त से स्टार्ट हो जाता है हमारा एक्चुअल प्लेसमेंट, 15 अगस्त। ठीक है सर। और इस बार भी होपफुली 15 सितंबर से तो हम शुरू कर ही देंगे फुल फ्लैश। यश शर्मा बताओ। शुरू तो हो ही चुका। यश शर्मा। हैंड डाउन करना भूल गया था। हिमांशु। हिमांशु जयंत। जय। हेलो। हाँ जी सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मेरे को मतलब परसेंटेज का डाउट था सर। मेरी मतलब बीटेक में भी मतलब परसेंटेज सही है और 10th में भी सही है सर, 12th में कम है तो सर। कितनी है? मैक्सिमम 12th में 60 से कम है।
मैक्सिमम 65 है। कंपनीज का क्राइटेरिया जो भी आता है वो 60% थ्रू आउट आता है। 60% थ्रू आउट आता है बच्चे, कम से कम 65 भी आता है, 60% थ्रू आउट तो आते ही आता है। हमारे पास ऐसी भी कंपनी जाती है जिनका क्राइटेरिया 90% भी होता है। न्यूजन जो आएगी उसमें 10th 12th 90% और बीटेक 60% चाहिए थ्रू आउट। अभी अगर किसी का क्राइटेरिया है तो वो 80% चाहिए 10th 12th एंड बीटेक। तो सर कोई स्कोप नहीं होगा फिर मतलब मेरे लिए? हिमांशु, जो ये बच्चे हैं ना जिनका 10th या 12th की प्रॉब्लम है, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो लोग कोक्यूब का यूजर जरूर लें, क्योंकि कोक्यूब की जो परसेंटेज आती है वो मैक्सिमम 40% आती है। ठीक है, ऑन कैंपस जितनी भी कंपनी जाती है, मेरा जो पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो 70 से 80% कंपनी 60% थ्रू आउट ही मांगेंगी। आप लोगों को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा एमकेट लो, ये रिकमेंड नहीं करूंगा ई लिटमस लो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सिर्फ कोक्यूब लो बस। वहां भी जितनी कंपनी आएंगी एमकेट और ई लिटमस वो भी 60% थ्रू आउट मांगेगी। ओके सर। ठीक है, जय बताओ। जय हेलो जय, आपका ऑडियो साफ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जय, आपका जय आप म्यूट करो, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। विदुषी बताओ। विदुषी कुछ कहना है? हिमांशु। अंकित शर्मा। अनिकेत। अभी आ रही है? नहीं जय, आपका दिक्कत है ऑडियो में। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ निकेत बोलिए। सर आपने अभी कोक्यूब का बताया था, ई लिटमस का ही बता दो कि उसमें क्या परसेंटेज मार्क्स? ई लिटमस में मैक्सिमम जितनी भी कंपनी जाएंगी वो 60% थ्रू आउट पे आएंगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, सागर गुप्ता बताओ। सर मेरा सर ये डाउट था कि सर जैसे मैं एमकेट और ई लिटमस में सोच रहा हूँ भरने की, सर आप कह रहे हो कोक्यूब्स बनना इंपॉर्टेंट है बहुत, तो मतलब तीनों भर लूं? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिनकी परसेंटेज 60% से कम है 10th या 12th, उनके लिए हाईली रिकमेंड है कि वो कोक्यूब की तरफ जाएं। अच्छा सर, मतलब जिसकी हायर है उससे तो वो बाकी और दोनों जिनकी अच्छी परसेंटेज है वो ई लिटमस पे जाएं। बट ई लिटमस पे जो 60 to 70% कंपनी जाएंगी अच्छे पैकेज पे, वो आएंगी हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। दिल्ली एनसीआर की बहुत कम कंपनी जाती है ई लिटमस पे। अच्छा पैकेज आपको चाहिए, आप रिलोकेशन के लिए ओपन है तो आप ई लिटमस के लिए जाइए बहुत अच्छे से। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, राजेंद्र सिंह। हेलो सर। हाँ जी। हाँ बताइए। सर एनसीईटी का भी टेस्ट हुआ था, उसका स्कोर इफेक्ट करेगा प्लेसमेंट को? उसका स्कोर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। जो कंपनी माई एनाटॉमी पे आएंगी उसमें आपको इफेक्ट करेगा। आप ये समझिए, फर्स्ट नौकरी का स्कोर हुआ, चाहे वो एमकेट का हुआ, कोक्यूब का हुआ, ई लिटमस का हुआ, फ्रेशर वर्ल्ड का हुआ, वो स्पेसिफिक टू डोमेन है। उस डोमेन पे जितनी कंपनी जा रही है वो आपको इफेक्ट करेगा, आपकी कैंपस प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सर जैसे अगर एनसीईटी सही नहीं हुआ है तो ई लिटमस के लिए भर दूं मैं? देखिए हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप सारे ही प्लेटफॉर्म लीजिए, जितनी मैक्सिमम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चांस ऑफ प्लेसमेंट आपका ही इम्प्रूव होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ जी सर, जैसे कई सारे ईसी के स्टूडेंट्स अभी दे आर फोकसिंग ऑन कोडिंग और डीएस एल्गो ये सब पे, तो सर जो आईटी कंपनीज वगैरह प्रोडक्ट कंपनीज जो भी आएंगी तो उनका तो क्राइटेरिया है कि इन्हीं के बेसिस पे मतलब जज करेंगी, राइट सर? हाँ जी, यस। हाँ जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ईसी के स्टूडेंट्स अगर अंडर प्रिविलेज तो नहीं रह पाएंगे ना सिर्फ स्ट्रीम के कारण? जैसे नहीं, मैक्सिमम कंपनी ईसी को अलाउ करती है। अच्छा सर। अलाउ भी करती है, और अगर आपकी कोडिंग मजबूत है तो फिर उन्हें कोडर चाहिए, चाहे वो ईसी से हो, सीएससी से हो, आईटी से हो, हार्डली मैटर्स। स्ट्रीम पे कुछ मतलब फर्क तो नहीं पड़ता ना सर? थोड़ा बहुत पड़ता है, 19-20 का।
ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू अगर अगर आपका इक्विवेलेंट कोडिंग स्किल का बंदा है तो सीएससी वाला तो शायद सीएससी वाले को ले ले, लेकिन अगर वो उसकी कोडिंग जरा से भी कमजोर है तो आपको ले। ऑल राइट सर, थैंक यू। बताओ अनिकेत। ऑल राइट, किसी की क्वेरी है, ही कैन स्पीक। अच्छा, कुछ हम आपके लिए डूज एंड डोंट्स वाली बात भी है। एक तो हाँ बताइए। बॉन्ड हमारा जो उनके साथ होता है, साइन होता है सर, उसके बारे में। अमन, जब तक आप किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग के बाद उस बॉन्ड की वैल्यू हो जाती है। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, वहाँ बॉन्ड का कोई ये हेलो, हाँ सर, वहाँ बॉन्ड इनेबल है। तब जब तक आप ज्वाइन नहीं करते तब तक उस बॉन्ड का इफेक्ट आपके उस पे नहीं आएगा। बॉन्ड इफेक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग होता है। जब आप सैलरी लेना शुरू करते हो तो पहली सैलरी आपने ले ली, उसके बाद बॉन्ड शुरू हो जाता है एक तरह से। ओके सर। और जनरल मनी बॉन्ड होता है। तो सर हेलो सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे आप लोगों ने बताया कि कोडिंग की कंपनीज में अगर हमें जाना है तो डीएस एल्गो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कुछ सर ईसी की कोर कंपनीज के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि हमें और जिनमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तो आप प्लीज बता दीजिए। अगर देखिए कम्युनिकेशन की कंपनी है ना, तो मान लिया भारतीय एयरटेल आ रही है, तो उस केस में आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट, मान लिया जिया सेमीकंडक्टर है तो वीएलएसआई डिजाइन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। मान लिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी आ रही है तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। मान लिया आपकी कोई एम्बेडेड सिस्टम की कंपनी आ रही है, ठीक है ना, तो दैट विल बी डोमेन स्पेसिफिक, किस तरह की कंपनी आ रही है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ईसी में जो एक सब्जेक्ट पढ़ के आप सारी कंपनीज को कवर कर पाए। जैसे कंप्यूटर साइंस में डीएसएल को लगभग सारी कंपनीज पूछती हैं, बट जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए, तभी आपका बेस बनेगा। बट अगर जिया सेमीकंडक्टर आती है तो आपको वीएलएसआई डिजाइन अच्छे से आना चाहिए। अगर वीवो या ओप्पो मोबाइल आती है तो आपको सेमीकंडक्टर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब कम्युनिकेशन वाला अच्छे से आना चाहिए। और अगर आपकी कोई एम्बेडेड सिस्टम की कंपनी आती है तो यू मस्ट नो द माइक्रो कंट्रोलर एंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, एक चीज सर मैं इन लोगों को और बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ जी, कि जो भी चीज आप अपने रिज्यूम में लिख रहे हैं, यस, दैट इज वेरी उसकी इंपॉर्टेंट। नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपने प्रोजेक्ट किया हो फर्स्ट ईयर में और उसे आपने रिज्यूम में मेंशन कर दिया, उसके बाद इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ये बोल दो सर ये तो मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, अब तो मुझे याद नहीं है। आप बहुत स्पेसिफिक रहना अपनी टेक्नोलॉजीज को लेके अपने रिज्यूम में और अपनी नॉलेज को लेके। जिस चीज की नॉलेज है बस वही चीज रिज्यूम में होनी चाहिए। देखो, इस दुनिया में इनफाइनाइट नॉलेज है, नो वन कैन नो दैट इनफाइनाइट नॉलेज एंटायरली, बट जो आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं वो आपने खुद लिखा है। और वो भी अगर आपको नहीं आता, आपको एक्स चीज नहीं आती, ठीक है, मुझे वाई आती है या वाई भी नहीं आती, जेड आती है, बट जो चीज आप लिख रहे हैं अपने रिज्यूमे में, अगर उस पर आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे तो वो बहुत बैड इंप्रेशन देता है। तो अच्छा, लास्ट ईयर में आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। 2 फ्रेंड थे, दोनों टीसीएस के डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 7 लाख के पैकेज पे। दोनों का इंटरव्यू एक एचआर के पास गया, दोनों ने ही पेटीएम में इंटर्नशिप की हुई थी और सेम टेक्नोलॉजी उन्होंने लर्न की हुई थी। दोनों ने सेम रिज्यूम एडिट करके अपना रिज्यूम प्रेजेंट कर दिया सेम इंटरव्यूअर को। एचआर ने दोनों को बाहर निकाल दिया। सही बात। अगर आप लोगों की आप हाँ बताइए सर, पिछले 2-3 साल के पीडीएफ्स हैं कि कंपनी कौन सी कंपनी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके जाती है। आप वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल है। ओके सर, आप बीपीआईटी की वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ अवेलेबल। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना आप तो 2015 से 19, 2016 से 20, 2014 से 18 उस सब बैचेस का आपको डेटा मिल जाएगा। कितने बच्चे लेके गई है, किस पैकेज पे लेके गई है, क्या कंपनी है, सब कुछ अवेलेबल है। और आपके बैच के लिए ये तो बहुत अच्छा है कि कैलेक्सपोर्ट पे अगर आप जाते हैं, फोरम्स में जाइए, उसमें इंटरव्यू के फीडबैक भी पड़े हुए बच्चों के, जो बच्चे जिस कंपनी में लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू फीडबैक आपको अवेलेबल हैं कैलेक्सपोर्ट के फोरम पे।
तो हमने इस बार बच्चों से बोला था जो जो जिस कंपनी में प्लेस होता जा रहा है भैया अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो। तो ऑलमोस्ट जितनी कंपनीज में बच्चा कम से कम प्लेस हुए हैं उनके तो हैं, जिनमें नहीं प्लेस हुए उनके नहीं है। वी आर ट्राइंग फॉर दैट आल्सो। सर जो कंपनीज होती हैं कुछ जो 2-3 साल का बॉन्ड लेती हैं, तो अगर हम 1 साल के बाद बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा? वो अगर आप उनका बॉन्ड अमाउंट पे कर रहे हो तो बॉन्ड आपको अमाउंट पे मिलेगा, करेंगे अगर तो आप बॉन्ड अमाउंट पे नहीं कर रहे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके। बल्कि लीगल केस भी कर सकते हैं उस केस में। करते नहीं है जनरली कंपनी, बट कर भी सकती है। अमाउंट पे कर दिया तब तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, अमाउंट पे कर दिया तो कोई इशू नहीं। सर बताइए। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, अभिषेक सर आपसे। हाँ बताएं। सर जैसे हम ईसी के बच्चे हैं तो हमने डीबीएमएस ऊप्स और ये सब तो पढ़ा नहीं है, ओएस मैं उसी पे आ रहा था बच्चे। हाँ सर, बस सर वही मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उस विषय में बताएं। सर बस आप क्लासेस ले लो सर, बेसिक्स तो एटलीस्ट हमें आ ही जाए, बाकी हम थोड़ा ऊपर का बिल्कुल 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 मैं बनाता हूँ इसका प्लान। ठीक है, जितना जल्दी आई नीड देखो ठीक है, खाली क्लास को पढ़ाने में तो मजा नहीं आएगा, तो मुझे स्ट्रेंथ चाहिए आप लोगों की। इसी ट्रिपल ई से कम बच्चे अच्छे हों और सीएससी आईटी में भी जो आना चाहे वो आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। रिवाइज कराने के लिए मैं प्लान बनाता हूँ इसका, ठीक है। और अच्छा, मैं प्लेसमेंट पॉलिसीज में एक चीज आप लोगों को और क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी बच्चा मास रिक्रूटर में प्लेस हो रहा है, जैसे कोई टीसीएस में हो गया, इन्फोसिस में हो गया, कॉग्निजेंट में हो गया, इन सबको हम सिंगल ऑफर में काउंट करते हैं। एक से ज्यादा मास रिक्रूटर मान लो टीसीएस विप्रो में है तो उसको एक ही मान लेते हैं, उसको हम एक ही मानेंगे। उसके बाद अगर वो कॉग्निजेंट में भी हो जाता है तो उन तीनों को एक ही मानेंगे। मास रिक्रूटर को के लिए हमारी पॉलिसी थोड़ी सी, हम लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते हैं उन बच्चों के साथ। हाँ, जो मास रिक्रूटर में प्लेस होते हैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं इन्फोसिस में, जो हैक विद इन्फी के साथ हुए हैं और इन्फिटी-क्यू के साथ हुए हैं। अगर ये लोग उसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो प्लेसमेंट पॉलिसीज में इनको रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा रहेगा। उनके साथ हम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ उनका ज्वाइनिंग को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कंपनीज को। अच्छा, जेडएस एसोसिएट ने काफी सारे बंदे हायर करे थे, तो उसको आप मास रिक्रूटर में काउंट करोगे इस बार? नहीं, जेडएस मास रिक्रूटर नहीं, जेडएस थोड़ी मास रिक्रूटर है। वो तो चांस की बात है भाई, उन्हें जरूरत थी उस टाइम पे हमारी कॉलेज में आई। समझिए कि जेडएस एमएसआईटी से 2 से 3 बच्चे लेके जाती है, भारतीय विद्यापीठ से भी 3-4 बच्चे लेके जाती है। इस बार जो जेडएस का रिक्रूटर है वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बस वो बेनिफिट बीपीआईटी के बच्चों को इस साल मिला है। सर इस साल मिलेगा? होपफुली। हाँ, अगर वो रिक्रूटमेंट में रहा तो मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा, मैं एक बार फिर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम ये टेक्निकल क्लासेस शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस की, तो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था। एक मिनट ये काउंट ले लें जरा, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। टाइमिंग्स थोड़ा वेब की क्लास से नहीं, वो दैट वी विल ट्राई टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखने की कोशिश। मैं तो सुबह 8 से 10 ले लूं, किसी के साथ क्लैश ही नहीं होगा। बताओ सर, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि वो 5-5 घंटे। हाँ सर, 8 आवर्स की क्लास। मैं सुबह 5 से 7 लेने के लिए तैयार हूँ, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो। सर आप बताओ ना, 5 से 7 वो पढ़ेंगे, फिर 8 घंटे दूसरी क्लास। नहीं तो आप बनाओ टाइम टेबल, आप बना लो। सर नोट्स प्रोवाइड करा सके तो आप, उसके बाद डाउट सेशन हो जाए हर वीक, ऐसा कुछ बन पाए। भाई आप ये देखो ना, आप डिसाइड करो आपको नोट्स चाहिए। नोट्स तो पीडीएफ सब जगह अवेलेबल है, मुझे कहो, मैं सबके प्रोवाइड करा दूंगा, कोई इशू ही नहीं है उसमें। नोट्स में तो सर कोई पर्सनल नोट्स आप प्रोवाइड करा सके और डाउट सेशन हो जाए हर वीक, 2 क्लासेस डाउट्स की हो जाए डायरेक्ट। नहीं, जो हम कराएंगे ना इसको बड़ी तेजी से ही कराएंगे, इसको पूरा इस तरह से। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं, पीपीटी पहले मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पीपीटी शेयर करता हूँ, डीबीएमएस के पीपीटी शेयर करता हूँ और नेटवर्किंग के पीपीटी शेयर करता हूँ। सर एक लंबी क्लास ले। सर एक डाउट था। हाँ बोल। बताइए सर, एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड कितनी कंपनीज आती हैं? बच्चे मैंने बताया ना, बहुत कम आती है। हमारे पास 5 to 10% कंपनीज होती हैं, वो यही कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आती हैं। बट वो एम्बेडेड के लिए या इनके लिए हायरिंग करती हैं, उनके पास प्रोफाइल्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपनी आती है ब्रेव्यूरा सॉल्यूशन, अगर वो 10 बच्चे लेके जाती है सॉफ्टवेयर साइड से, तो 3-4 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक साइड से भी लेती है हर साल। जैसे इस साल उन्होंने 15 हायरिंग करी है, 15 में से 11 बच्चे सीएससी आईटी के, 4 बच्चे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिए हैं।
उनको वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट में ही डालेगी। ओके सर। हेलो। हाँ जी। अच्छा हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर मेरे बताइए। को ये पूछना था बेसिकली, जो हायर पैकेजेस लेके आती है कंपनी और जो बच्चों को रिक्रूट नहीं करके जाती है, जैसे हाँ जी। अभिषेक सर बोल रहे थे कि उनका जो भी फीडबैक रहता है वो बच्चों के साथ शेयर करा जाए, तो सर शायद वो मिल जाए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारी प्रिपरेशन है भाई कैलेक्स को। अच्छा वो ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। वो हाँ हम सर। ट्राई कर रहे हैं। बाकी आप क्या कर सकते हो, मैंने वो कंपनीज के नाम अभी चैट पे डाले। वो जोश टेक्नोलॉजी है, वॉचगार्ड है, हेचडीएन है, मेवन हाइव है, ट्रेवलोका है। कोडिंग तो स्किल्स आप कमजोर है भाई। ग्लास डोर पे जाके भी इन कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस और रिव्यू चेक कर सकते हो। वहां इनके इंटरव्यू फीडबैक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप नेक्स्ट। कह रहे थे कि अगर इन्फोसिस और टीसीएस में दोनों में सिलेक्शन हो तो उसको एक ऑफर काउंट करेंगे। हाँ, उसको हम एक ही काउंट करेंगे बच्चे। ठीक है सर, ठीक सर हैक विद इन्फोसिस उसमें काउंट होगा? बच्चे मैंने बता दिया ना, इन्फोसिस का जहाँ नाम आ गया वहां चाहे वो ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस है, हैक विद इन्फी है, इन्फिटी क्यू है, कुछ भी है, वो एक ही काउंट हुआ। नेक्स्ट किसी की क्वेरी? सर जैसे ये जो डबल पैकेज वाली पॉलिसी है कि अगर 4 पे होते हैं तो फिर 7 तक नहीं बैठ सकते, तो अगर जैसे किसी का 10 के अराउंड पैकेज पे होता है तो क्या उसको भी 20 का वेट करना पड़ेगा, या वो 12 15 वगैरह की जो अगर आती है कंपनीज तो बैठ सकता है उसमें? बच्चे मैंने कैसे बताया आपको, मैंने बताया ना कि अच्छे पैकेजेस पे हम लोग रिलैक्सेशन देनी चालू कर देते हैं। 10 वाले को हम 15 पे अलाउ कर ही देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, क्या पोजीशन है, पर कितने एक बच्चों बात की ये है कि अगर एलिजिबल वो हैं। जो 10 लाख पे कंपनी आ रही है, अगर वो दिल्ली एनसीआर से है और वो पहले ही ये चीज क्लियर करके जाती है कि इन बच्चों को इस पैकेज पे अलाउ किया जाएगा, तो वो हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि हम कंपनी के साथ भी अपनी प्लेसमेंट पॉलिसी शेयर करते हैं हर बार। जैसे अगर कोई बच्चा न्यूजन में प्लेस हो जाता है तो न्यूजन का बिल्कुल साफ कहना है कि ये 4.25 लाख पे हमारे साथ प्लेस है, कॉलेज कैंपस इनको 7 लाख से नीचे अलाउ नहीं करेगा, तो वो हम करते भी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक प्लेसमेंट की मेल्स आप ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। और जो पॉलिसीज हैं, जैसे संजय सर बार बार कहते रहते हैं अप्लाई करो, नहीं तो अपना रीजन भरो, वो नहीं होना चाहिए। आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करो, और नहीं कर रहे तो उसका रीजन गूगल फॉर्म में फिल करो, ठीक है। तीसरी चीज, डिसिप्लिन और टाइम की पंक्चुअलिटी जो प्लेसमेंट प्रोसेस है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स कई बार क्या होता है, कंपनी का प्लेसमेंट प्रोसेस 9:30 बजे शुरू होना है, बच्चा 10:30 11 बजे आ रहा है। सर आज भी एक प्रॉब्लम हुई है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, कंपनीज हमारी खुद की नहीं है। आज सीडी के ग्लोबल ने बच्चों की जो शॉर्टलिस्टिंग करी है वो हमसे शेयर नहीं करी। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको डायरेक्ट मेल कर दी है, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चे टेस्ट दे भी नहीं पाए क्योंकि उन्होंने मेल टाइम पे चेक किया ही नहीं। बताओ। आप लोगों को अपना मेल हमेशा चेक करना है। अभी भी मेरे पास 4-5 बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, सर कि हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए बट हम टेस्ट नहीं दे पाए क्योंकि आपके मैसेज के बाद हमने मेल चेक करी। सम टाइम कंपनीज आप लोगों को ही डायरेक्ट अप्रोच करेंगी। सर उस पॉइंट पे एक बात बोलना था कि जो मेल आई थी ना वो 4 o'clock के अराउंड आई थी, एंड मतलब कि मैंने टेस्ट दे दिया था उसी टाइम पे, बट जो उसका टेस्ट टाइमिंग थे वो 12 to 6 था, बट हमको मेल 4 o'clock की आई थी। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे मेल समझ में नहीं आई ये बात। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, कंपनीज हम लोगों को हर बार इन्फॉर्म नहीं करती शुभम। ओके सर। अब हम कंपनीज को मेल लिखेंगे, वो क्वेरी वो हमारे हाथ में है कि अब हम उससे बात करेंगे। अब उसका डिसीजन अब कंपनी लेगी कि वो जो बच्चों नहीं दे पाए उनको वो टेस्ट के लिए दोबारा अलाउ करते हैं या नहीं करते। नहीं बट सर ये वाली बात समझ नहीं है कि टेस्ट से सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा और उस टाइम मेल आ रही है, तो वो वाली वही तो मैं कह रहा हूँ ना शुभम, ये प्रॉब्लम रहती है प्लेसमेंट्स में। ओके सर। हाँ, ये इंफॉर्मेशन कंपनी जो बहुत बार होता है कि प्लेसमेंट ऑफिसर के साथ शेयर नहीं करती। अब एक बात देखो, आपके पास भी कोई मेल आई तो आप लोग हमें इन्फॉर्म नहीं करते। अगर आपने मेल चेक कर ली थी 4 बजे, अगर ऐसा कभी होता है कि आप लोगों के पास मेल आ रही है तो आप लोग मुझे अपडेट करें, मैं सब बच्चों को अपडेट कर सकता हूँ वो चीज तुरंत। ओके सर। ग्रुप में डाल दो, संजय सर को डाल दो, मुझे बता दो तो हम अपने अपडेट करेंगे, हम रहते हैं अपडेट। ठीक है, उसका बेनिफिट। अब कई बार क्या होता है, आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप घर वापस आ जाते हो, उसके बाद कॉलेज को बताते हो सर मेरे साथ वहां ये प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा नहीं करना। एटलीस्ट आप जब वहां अवेलेबल हो उसी टाइम हमें बताओ। हमें भी कोई एक्शन लेना है, एचआर को बोलना है,
या कई बार एचआर कुछ बोलता है, हमारे लिंक अप हायर अथॉरिटीज के साथ होते हैं, हम उन डिसीजंस को चेंज करवा सकते हैं, पर वो एट ए पॉइंट होता है। ये नहीं कि आप घर आने के बाद हमें बता रहे हो, उन चीजों पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। फिर जो हो गया हो गया। अच्छा, मुझे फिर बताओ आप लोग फाइनली, यश आप एक कंसेंसस डिसीजन ईसी और ट्रिपल ई में लेके बताओ कितने लोग क्लासेस किस तरह से करनी है फिर इनको। ओके सर। अगर सिर्फ पीपीटी देख के वीक में एक क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम की करनी है, एक डीबीएमएस की, मतलब कितनी क्लासेस करनी है उतनी फिर मैं प्लान करना पड़ेगा मुझे। सर आई गेस 15 तक पेप कोडिंग की क्लासेस नहीं है, तो अगर हम कल परसों में ही अगर ले ले क्लासेस तो देखो पेप कोडिंग में 50 बच्चे हैं, मुझे 360 बच्चों का सोचना है। अगर ये भी नहीं है कि पेप कोडिंग ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सक्लूड, बट ऐसा नहीं है कि भाई बाकी बच्चे अगर इंटरेस्टेड, चलो मैं क्लास प्लान करता हूँ, ठीक है, कल शाम को रखते हैं फिर ओएस की क्लास। जी सर। हाँ सर श्योर, है ना, कल शाम कोई क्वेरी है तो बता दो अभी, नहीं तो फिर हम हेलो फिनिश करते हैं। हेलो हाँ जी। सर, अभी मैं डालता हूँ ग्रुप में। आनंद ने पूछा था कि 10 वाला बेस पे बैठ सकता है, तो आपने कहा था कि 15 पे भी अलाउ कर सकते हैं अगर सिचुएशन हो तो। हाँ जी। हाँ तो सर अगर वो 10 वाले के ऑलरेडी 2 पैकेज लग चुके हैं तो उसे फिर 15 पे भी अलाउ नहीं करोगे आप? बच्चे मैंने बताया ना, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर वो कंपनी अलाउ कर रही है तो आप अलाउ कर दोगे? हाँ, अगर कंपनी हमें कहती है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो हम अलाउ करते हैं। अगर कंपनी को प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम है, ये आप मान के चलिए। सर कंपनी की पॉलिसीज आप पहले, हाँ सर कंपनी की पॉलिसीज आप पहले बता सकते हो अप्लाई करने से पहले कि इनकी ये नहीं बच्चे, हम हर कंपनी की पॉलिसीज आपको नहीं बता सकते, इसीलिए हम इसको 2x करके हर बार चलते हैं। अच्छा। आप किसी को भी कोई क्वेरी है, किसी को कोई प्रोफाइल अच्छा लग रहा है या कंपनी अच्छी लग रही है या उसकी ड्रीम कंपनी है, तो वो 1 to 1 डिस्कस कर सकता है। केस टू केस बेसिस पे डिसीजन हो जाता है। सर आपको पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं अगर ऐसा कोई सीन होता है, या फिर वैसे भी कभी बात करनी हो तो? कभी भी आप कर सकते हो, और मोर ओवर आप लोग placement.bpit पे जब भी मेल करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा। अब मेरे पर्सनल पे करोगे, मुझे हर बच्चा पर्सनल करता है, अब सोचो मेरे पास कितने मैसेज आते होंगे दिन में। जो मेल है उस पे हम लोग 5-6 लोगों की टीम है, कोई भी आपको रिप्लाई कर देगा, वो इजी वे है हम लोगों से बात करने का। मेल को एक बार आप चैट में डाल सकते हो, मेल आईडी? हाँ मैं अभी डाल देता हूँ, आपको मेल उसी से ही आती है ना तो है placement.bpit@gmail.com। अच्छा उसी पे करनी है, ठीक है। हाँ उसी पे ही मेल करना है, उस पे टीम में जो भी अवेलेबल होगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। ओके सर। तो सर एक और बात पूछनी थी कि ये हमको जो कोकिड्स वगैरह में सेल्स की कंपनी आ रही है, तो इस सेल्स की कंपनी का हमारे कोई आइडिया नहीं कि क्या प्रोफाइल है, क्या समझ में नहीं आ रहा है इन कंपनी का कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आप अप्लाई मत करो। ओके सर। हेलो हाँ जी सर, मुझे ये डाउट था कि जो अभी हमारा एनसीईटी टेस्ट हुआ था उसमें सेफ स्कोर मतलब क्या होगा, मतलब मिनिमम जिस पे किसी। ओके सर 60% सेफ स्कोर। और सर जैसे इससे थोड़ा प्लस माइनस होता है तो? देखिए जो सबसे पहली कंपनी आई थी टैक्स सिस्टम, उसकी जो कट ऑफ थी वो 50% थी। ओके सर। सीडी के ग्लोबल की कट ऑफ मैंने चेक नहीं कर पाया, कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है कट ऑफ। हमें भी क्या, हम लोग डाउनलोड करते हैं डेटाबेस, उसमें देखते हैं कि कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनकी क्या कट ऑफ थी, वहां से हम लोग आइडिया लेते हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी कोई कंपनी ये डिस्क्लोज नहीं करती है कि उनका कट ऑफ क्राइटेरिया क्या रहा है। हम लोग खुद भी आईडीए से ही चेक करते हैं। उसमें भी एनसीईटी में कुछ बच्चों की 50 से ज्यादा थी परसेंटेज, बट उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। हमने कंपनी को मेल डाली थी, उसमें हमें पता लगा कि ये लोग चीट कर रहे थे। किसी ने मोबाइल ऑन किया हुआ था, किसी ने सेकंड टैब ओपन किया हुआ था। अच्छा, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनसीईटी का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं? एनसीईटी मैंने अभी दोबारा रीअपीयर करवाया तो है कुछ बच्चों को, मेरे ख्याल से 180 स्टूडेंट्स ने रीअपीयर किया है। सर मैंने वो फॉर्म फिल किया था पर वो 10 बजे के बाद किया था, तो फिर तब तक लिस्ट आ चुकी थी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फॉर्म जब तक ओपन था जितने भी बच्चों ने फिल किया था उन सबका डेटाबेस हमने शेयर किया था। और अब कोई चांस होगा सर 30th से पहले जस्ट पे के लिए? देखिए वो लोग कुछ बना रहे हैं अपने सर्वर पे, 5 से 6 दिन के बाद उन्होंने बोला है कि उनके प्लेटफॉर्म पे ही रीअपीयर का ऑप्शन आएगा। अच्छा, पर उसमें क्या टाइम लिमिट है, बच्चे कितने दिन पहले तक टेस्ट दे चुका है वो अपीयर कर सकता है या क्या है, वो उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। आज मैंने कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट उनके साथ शेयर करी थी तो उन्होंने मुझे अपडेट किया कि अब उनके प्लेटफॉर्म पे ही रीटेस्ट का ऑप्शन आएगा
5 से 6 दिन के बाद। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन चैट में है, आई एम फ्रॉम ट्रिपल ई, सो फॉर मास रिक्रूटर वी शुड फोकस ऑन विच पार्ट? मास रिक्रूटर जो ज्यादा ना एप्टीट्यूड पे फोकस करते हैं, ठीक है, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी इसी पे फोकस रहता है। टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिज्यूम से ही आते हैं, उससे बाहर नहीं आते। एक दो सब्जेक्ट आपके कोर ब्रांच का पूछ लेंगे भाई, किस में आप कंफर्टेबल हो, उसका थोड़ा बहुत पूछ लेंगे ऊपर से, भाई फ्लिप फ्लॉप्स क्या होती हैं और रजिस्टर्स क्या होते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते अगर इसी से हैं तो। और बेसिकली उनका देखना ये है कि भाई आपका एप्टीट्यूड ठीक है तो ट्रेन तो हम कर लेंगे। मास रिक्रूटर का फंडा ये होता है, कोडिंग नहीं आती कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, सीखने का मादा है बंदे के अंदर, तो वी विल टीच। तो सर इसी के रिगार्डिंग सर इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा था। हाँ बताएं कि सर जैसे कुछ एप्टीट्यूड वगैरह का भी क्लासेस हो सके ओएस के साथ, क्योंकि सर ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ने पे ना वो मतलब बन नहीं पा रहा कुछ, क्योंकि एनसीईटी में 2 बार ट्राई मैंने कुछ शुरू की थी उस टाइम पे, फिर कुछ तुम सुस्त पड़ गए, कुछ हम सुस्त पड़ गए। हमारे एक टीचर थे 12th में, वो कहते थे तुम पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ाना नहीं चाहते, तुम साहब हो तो हम लाट साहब हैं, है ना। नहीं सर, कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी क्लास की टाइमिंग के साथ सब बाकी क्लासेस भी थोड़ा क्लैश करती है, तो मतलब रिकॉर्डिंग्स तो देखी थी सर, पर क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे। तो मुझे लगा कि भाई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो मैंने कम कर दी। मैं तो यही तो उसको कंटिन्यू कर सकते थे, मैं भी घर पे फ्री बैठा हूँ, ऐसी बात तो है नहीं, पढ़ाने में तो मजा ही आता है, बट सामने बच्चे हो तो जब भी तो। बच्चे कम होने शुरू हो गए थे भाई, 25-30 बच्चे, कम से कम 50-60 की स्ट्रेंथ तो यार कम से कम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हेलो, ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, आप बनाओ प्लान। यश हेलो, हाँ जी प्रांकुल। हाँ जी सर, आप ये टेक्निकल ओएस और ये एप्टीट्यूड की सर मॉर्निंग में क्लास रख लो सर, काफी बच्चे आ जाएंगे। मॉर्निंग में रख लेते हैं, कल तो शाम को रख लें, तैयारी तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कल 4 बजे रख लें। जी सर। कल 4 से 6 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यस सर। 4 से 6 2 घंटे में मैं कम से कम 25% खींच दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, 8 घंटे में सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करा दूंगा। ओके। 4 क्लासेस दे दो मुझे 2-2 घंटे की। सर जैसे अभी आपने बोला ना कि जो मास रिक्रूटर्स होते हैं, अगर कोई बच्चा ईसी का है तो उससे थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन ईसी के रिलेटेड पूछ लेते हैं। अगर वो एज इन मतलब वो कोडिंग के साइड से अप्लाई कर रहा है कि उसकी कोडिंग पार्ट स्ट्रांग है, तो उसके क्वेश्चंस कोडिंग नहीं आपके अगर रिज्यूमे में दिख जाएगा ना, आपने कोडिंग के प्रोजेक्ट किए हुए हैं, वेब के प्रोजेक्ट किए, तो वहां से उठाएंगे, रिज्यूमे भी लेते हैं वो। ओके सर। रिज्यूमे पे फोकस करती है इधर इंटरव्यू में। सर एक चीज पूछनी है सर कि जैसे जो कंपनीज कॉलेज में नहीं आती और उनके उसमें बच्चे प्लेस्ड हैं, तो उनसे रेफरल डलवा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल डलवा सकते हैं। सर एक चीज ये पूछनी थी, जो कंपनीज बॉन्ड के थ्रू करती हैं तो उसमें कॉलेज भी कुछ उनका क्राइटेरिया देखता है या बच्चों को ही हैंडल करना पड़ता है बॉन्ड? कैसे समझा नहीं? बच्चे बॉन्ड हम लोग आप लोगों को पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं कि इस कंपनी में ये बॉन्ड है, इतने साल का है, ये बॉन्ड अमाउंट है। उसके बाद डिसीजन आपका है, अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है आप जाइए, अगर आपको कंपनी नहीं अच्छी लग रही तो आप उसको लीव कर सकते हैं। ओके सर। और सर जो स्टूडेंट्स पहले ही प्लेस हो चुके हैं बॉन्ड के थ्रू, उनके थ्रू जो एक्सपीरियंस है थोड़ा शेयर हो जाएगा? वो हम आपको नंबर शेयर कर देते हैं, जो बच्चे उस कंपनी में प्लेस हैं पहले से, आप उनसे बात कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी को नंबर चाहिए हो तो वो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में आके, प्रोमिला मैम बैठती हैं, उनसे आके आप लोग किसी भी बच्चे का जो किस कंपनी में प्लेस था, किस ईयर में प्लेस था, वो आके आप नंबर मांग सकते हो। वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो कौन सा बच्चा किस कंपनी में प्लेस है। अगर आप खुद भी टच में आना चाहते हो तो वो लिंक्डइन के थ्रू भी आ सकते हो, मैक्सिमम बच्चे लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर। किसी की और कोई क्वेरी? हेलो, हाँ जी सर अमेज़न कब आती थी नॉर्मल टाइम्स में? कौन कौन से मंथ में आती थी अमेज़न? सॉरी, अमेज़न कौन कौन से पिछली बार तो शायद नवंबर में आई थी। दोनों वो AWS और SD वाली दोनों? हाँ 15-20 दिन का गैप था, 15-20 दिन का गैप था, नवंबर में थी मेरे ख्याल से दोनों। सर AWS का भी थोड़ा ब्रीफ बता दो सर, मतलब कि जो उन्होंने AWS वालों ने क्लास ली थी उसमें तो कुछ खास मतलब कि वो पढ़ा बोल ही रहते, कुछ समझा तो रहे। AWS स्पेसिफिक क्लासेस में अलग से ले लूंगा और OS की। देखिए AWS में स्पेसिफिक है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग और डीपली नॉलेज चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हें थोड़ा ना अलग तरह से चाहिए, वो बेसिकली बूटिंग साइड पे और उस साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। कुछ AWS का भी आना चाहिए, AWS का भी आना चाहिए।
AWS बेसिकली ट्रबल शूटिंग पार्ट पे फोकस करती है. ओके, दैट्स व्हाई जो OS की बात, AWS के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग के ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछेंगे. अगर आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है AWS, देन दे विल आस्क द क्वेश्चन. बाकी वो बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग को ही लेके चलते हैं. AWS वो खुद आपको सिखाएंगे. ठीक है. ऐसा नहीं है AWS आना चाहिए. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, ये पता होना चाहिए आपका फ्लो कैसे चलता है. आपने यहाँ पे कोई ब्राउजर पे टाइप किया www.bpitindia.com, उसके बाद क्या फ्लो चल रहा है, कहाँ पे सर्वर पे जा रहा है, कहाँ पे क्वेरी जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे आ रही है, वो सारा फ्लो आपको पता होना चाहिए. ओके सर. और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए, आपने स्विच ऑन किया, उसके बाद जब तक आपकी लॉगिन स्क्रीन आ रही है उसके बीच का प्रोसेस क्या है, उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है तो किस तरह से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं. वो सारी चीजें उनका थोड़ा सा अलग है सिस्टम. बाकी AWS क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछती है मैं आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. पहले ही बता देती है, आप लोगों को मेल मिली होंगी. वो टॉपिक बता के इंटरव्यू से 7 दिन पहले ही वो लोग आपको क्वेश्चन शेयर कर देंगे और 80% क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में. बट बहुत डीप में जाके पूछते हैं उन क्वेश्चंस को. वो क्वेश्चन बहुत डीप में पूछेंगे. बस मतलब आप ये समझो, ढंग से थ्योरी आनी चाहिए, ऐसे कह रहे हैं ना. ये समझो आप कि एक घंटे के 4 इंटरव्यू होते हैं. अरे बाप. अच्छा, समझे. ओके. और उसके बाद जो बच्चा निकल के आता है ना, 1 घंटे के इंटरव्यू के बाद, 1 घंटे से निकला, फिर दूसरे इंटरव्यू में घुस गया, दूसरे से निकला, अगर क्लियर कर लिया तो फिर तीसरे में जाएगा, तीसरे से भी अगर क्लियर कर लिया तो फिर चौथे में जाएगा. ऐसा है कि आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा कॉलेज में ही. उसमें कोई टीम नहीं आती Amazon की. वो नॉर्मल दिल्ली के पार्टनर होते हैं, टेस्ट पार्टनर, वो आते हैं. Amazon की टीम जिस दिन आएगी उसमें आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा. जैसे 8 लोगों की टीम आई, 4 लोगों का 1 घंटे का इंटरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा होगा, 4 बच्चों का इंटरव्यू नेटवर्किंग का चल रहा होगा. तो उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले के पास भेज देते हैं. जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर होता है उसको नेटवर्किंग वाले के पास भेज देते हैं. दोनों में से जो बंदे इंटरव्यू क्लियर करते हैं उनका फिर मैनेजरियल राउंड होता है, क्लियर होता है. उसके बाद उसका HR इंटरव्यू होता है. HR इंटरव्यू में 90% स्टूडेंट्स को वो क्लियर कर देते हैं. ओके, ठीक है. तो ऑपरेटिंग और नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और वो 1-1 घंटे का मिनिमम इंटरव्यू होता है उस टाइम पे. ओके सर. बट घबराने की जरूरत नहीं है ना. बच्चे निकलते हैं, BPIT से निकलते हैं, AWS में भी निकले हैं, Amazon सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी निकले हैं और दूसरी अच्छी कंपनीज में भी निकल सकते हैं. AWS में लास्ट ईयर भी 3, इस साल मतलब 20 बैच से भी 3 बच्चे गए हैं, 2019 से भी 3 बच्चे हर साल जाते हैं. ओवरऑल जब भी वो हमारे कैंपस में आते हैं पूरे IP का जॉइंट BPIT में ही होता है. टोटल हायरिंग वो 40 के आसपास करके जाते हैं. 30 से 40 बच्चे हर साल लेते हैं. और होस्ट कॉलेज को हमेशा कुछ ना कुछ एडवांटेज रहता ही है, कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होस्ट कॉलेज के प्रति रहता है. तो पिछले साल तो मतलब ये था कि IP में कि सारे कैंपसेस BPIT में क्यों हो रहे हैं. मतलब सर we were lucky to bring so many companies because of संजय सर's effort. सर एक्चुअली वेब कोडिंग क्लासेस की वजह से ना इस साल इंटर्नशिप नहीं कर पाए थे हम. तो इंटर्नशिप बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट में. आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे ना, प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो फिर आप अच्छे से कर सकते हैं. इंटर्नशिप का और वो सर्टिफिकेट वही दे देंगे, आएगा. सर्टिफिकेट वही दे देंगे वेब कोडिंग वाले मेरे ख्याल से, या जहाँ से भी आप ट्रेनिंग किए, मेरे ख्याल से वो बेटर है. इंटर्नशिप में सर्टिफिकेट लेके बिना कुछ काम किए सर्टिफिकेट मिल जाए या फालतू का काम करा लें वो आपसे इधर उधर का, उससे अच्छा है कि आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करें. हाँ सर वही इंटर्नशिप का इफेक्ट तो नहीं आएगा ना, बस ये पूछ रहा था मैं. इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा आएगा. ठीक है सर. और सर ये पूछ रहा था हाँ कि सर जब वेब कोडिंग के बारे जब हम बात कर रहे थे. अच्छा, अब लास्ट 10 मिनट में हम बंद कर देंगे इसकी, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट कॉल है, चलती रहेगी आपकी, है ना. अच्छा सर, लास्ट पूछ लेता हूँ कि मतलब जब आप उनसे बात कर रहे थे तो सर कि एंड्रॉइड भी आपने डलवाया था. अगर एंड्रॉइड बच्चे एंड्रॉइड कर मोबाइल डेवलपमेंट भी डलवाया था, अगर कंपनीज नहीं आती तो सर वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा आपने? संजय सर. हाँ जी स्वामीनाथन, कैन यू रिपीट? हम लोगों ने एंड्रॉइड और मोबाइल इसलिए डलवाया है उसमें कि कुछ कंपनीज आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेती हैं, तो नॉलेज तो जरूरी है उन चीजों की. और मुझे लगता है कि बढ़ेगा, मोबाइल का स्कोप बढ़ेगा. अच्छा ठीक है. इस कोविड के चक्कर में जो सिचुएशन आई है आज की डेट में,
वो आपके मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ मेरे को लगता है कि इस बार कुछ हायरिंग्स इंक्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल। गांव के स्कूल्स में, मेरे गांव के स्कूल में आई कुड नॉट इमेजिन कि मेरे गांव के स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो सकती है। अच्छा। और वहां पे बच्चे मतलब जिन्होंने शायद स्मार्ट मोबाइल कभी चलाया हो कि नहीं चलाया हो, बट वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कर रहे हैं, और तरह तरह की टेक्नोलॉजी मोबाइल की निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि बढ़ेगा मोबाइल का। सर बाकी तो मेन हमें डीएस और एल्गो में फोकस करना मेन तो चाहिए। डीएसएल को मेन डीएसएल को, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ऊप डीबीएमएस। अगर ये डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी ना हो, मतलब डीएस अच्छा हो पर डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो, तो काम चल जाएगा। डीएसएल को लक वाली अच्छा है बात तो है। मतलब अब आप 90 काम कुछ कंपनीज में डिसएडवांटेज पे रहोगे, बाकी जगह पे आपको एडवांटेज रहेगा दूसरे लोगों के ऊपर। जो स्पेसिफिक वेब डेवलपमेंट की कंपनी है वो तो भैया वेब डेवलपमेंट ही मांगेगी, उसको कराना ही मर्न स्टैक पे काम है। तो आपको अगर मर्न स्टैक पे डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड नहीं आता तो आप उसके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं हो। बट वो कंपनी बताइए ना 15 से 20% होती है। सर अगर डीएसएल गो के नेक्स्ट आप क्या कहोगे कि इस पे फोकस करो? वो जैसे आपने बताया कि डीएसएल गो एप्टीट्यूड। अभिषेक सर, मैं भी यही बोलने वाला था। हाँ सर बिल्कुल। सबसे पहले मेजर आपको फोकस ही एप्टीट्यूड पे करना है। डीएसएल को भी भूल जाओ एक बार को भी। अगर आप फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं कर पाए तो सेकंड और थर्ड राउंड में आप पहुंच ही नहीं पाओगे। सर मेरा यहाँ पे एक डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि एप्टीट्यूड आपका जो बन चुका ना अब तक, उसको आप पॉलिश ही कर सकते हो, है ना सर? बात तो एप्टीट्यूड में स्पीड की है ना। स्पीड की है, वो तो स्पीड ही करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है आपको। ऐसा ना हो कि डीएसएल के चक्कर में आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करना। हाँ ये बहुत जरूरी है भैया, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस। जो भी जहां से भी जो ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीएसएल को आ गया, उसके बाद आपका वेब डेवलपमेंट आ गया, फिर बाकी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो मेन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, लूप्स। ठीक है, थैंक यू सर। लास्ट 2 क्वेरी लेंगे अब हम, कोई भी बताए। सर मेरे ख्याल से क्वेरी खत्म ही होगी। एक चीज बताऊं भाई, संजय सर और मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। टाइमिंग अभी तो खैर पता नहीं कब वो प्लेसमेंट सीजन शुरू होगा जो कॉलेज वाला है, लेकिन हमने बहुत लोगों को वापस भगाया है। 10:30 का टाइम है और कोई अगर 11:15 पे आया, हमने उसको वापस भगा दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज, जो हमने एलिजिबल स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होते और ना रीजन बताते, उनको जब हम कहते हैं कि हम बैन करेंगे कंपनीज में, तो हम बैन करते हैं। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, बैन हुए हैं 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनीज में, और उसको रिवोक करने के लिए फिर आप मेहनत करो। उससे अच्छा आप रीजन भर दो 2 मिनट लगा के। हो सकता है उसको रिवोक कर, बैन को रिवोक कराने के लिए आपको 2 दिन लगाने पड़े, प्रिंसिपल मैम के पास घूमना पड़े, अपने एचओडी के पास जाओगे, फिर डीन के पास जाओगे, तब भी नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि रीजन भर दो, whatever is the reason, we will analyze that, and if the reason is legitimate, we will consider that. Okay, so I finish here. संजय सर बंद करते हैं, मिलते हैं फिर। अच्छा एक चीज बताएं। हेलो हेलो। हाँ जी सर। क्या रिपीट टेलीकास्ट की जरूरत है? अभी रिकॉर्डिंग से काफी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। एक बार रिकॉर्डिंग दे देते हैं पहले बच्चों को, है ना? अगर उसके बाद कोई मांगता है तो फिर देख लेंगे रिपीट टेलीकास्ट। सर एक बार जो आप कह रहे थे हमारे सीनियर जो अमेज़न में प्लेस हुए थे, उनसे बात करवाइए। हाँ सर, वो देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मुझे ना वही 300 वाले वो देखना पड़ेगा, कोई इस तरह का मिले कि कम से कम 250-300 आ सकें। गो टू मीट में आते हैं लेकिन उसका वो, चलो मैं देखता हूँ कोई। सर कॉलेज में अवेलेबल होंगे सर अभी प्लेस कोई भी क्वेरी के लिए? कॉलेज में नहीं आ रहे अभी, कल जाऊंगा वैसे मैं, लेकिन वैसे अवेलेबल नहीं हूँ। अच्छा अगर मुझे कल कॉलेज जाना हुआ तो वो भाई क्लास का फिर देखना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ, बताता हूँ। अगर कॉलेज जाना हुआ तो फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा कल, फिर परसों लेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ जी सौम्या। सर जैसे आपको अमेज़न वाले जो भैया हैं उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे, वैसे अगर किसी और भी कंपनीज का वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार कुछ ऐसा सेशन हो जाए तो मतलब। ओके ठीक है, फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, करते हैं इसको। ठीक। हेलो। नहीं सर बंद करते हैं, बस क्लोज करें।
ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट थी कि सर वो जो पीडीएफ है आज ही रिलीज कर देना सर, ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स वगैरह का। भाई वो ढूंढ के बनाने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ढूंढने अच्छा। पड़ेंगे, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास ही होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के जो है वो मुझे लेने पड़ेंगे दूसरे टीचर्स से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं होपफुली कल तक कर दूंगा, कल सुबह तक। वीएमएस ओएस का मैं कर दूंगा कल सुबह तक, ठीक है। बाकी के थोड़ा फिर मुझे लेने पड़ेंगे दूसरे टीचर्स से। सही नोट्स जो होंगे तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड होंगे ना थोड़े। वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड बनाना होगा तो फिर मुझे और टाइम दो आप थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड बना दोगे सर? एक बार मुझे टाइम दो, अब जल्दी मत करो, ठीक है। गिव मी 1 week टाइम, आई विल आस्क द टीचर्स टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर दैट पर्पस, राइट। हेलो, 1 वीक का टाइम दो मुझे, 1 वीक में आपको ये नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे। यस सर। ठीक है, चलिए। थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड सर क्लास के टाइमिंग भी कंफर्म कर देना ग्रुप पे। भाई मैं ग्रुप पे कंफर्म करूंगा, मुझे याद आ गया कल मुझे कॉलेज जाना है, अगर कॉलेज जाना हुआ तो फिर मैं 4 to 6 नहीं ले पाऊंगा क्लास। कोई बात नहीं सर, आप एक बार कंफर्म कर देना बस जब भी हो। हाँ, मैं ग्रुप पे कंफर्म करूं तभी कंफर्म मानना, अभी मेरी क्लास कंफर्म नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा है। ओके, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं बंद कर रहा हूँ।